By the way, simple combination की expansion क्या है? N combination R is n factorial divided by R factorial divided by n minus R factorial. This extra is for what? Sorry, this extra or that extra. This extra is for what? To cancel repetition. वो याद है वो 2 से 8 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल से हम डिवाइड कर रहे थे जो परमुटेशन क्वेश्चन थे जिसमें उसने बोला था रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ये रिपीटिशन के लिए आ जाता है, बाकी इतना कोई फर्क नहीं। अलग तरीके से कराना है चैप्टर 3 कुछ चीज़ वो तो गाइड करें। क्वेश्चन 2 1 को इग्नोर करो, लेट्स cover 2. 2 says that n into n minus 1 combination r minus 1 should equal n minus r plus 1 into n combination r minus 1. So we have to prove that. Just take left hand side. लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास n इंटू इसका कम्बिनेशन क्या आ जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल जो हमने लिखा था और फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन का फैक्टोरियल। तो जो भी नंबर आएगा वो पहले भी आएगा। हाँ, और अकेला भी आएगा फिर उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। So n into n minus 1 factorial r minus 1 factorial माइनस करोगे तो r माइनस हो जाएगा, 1 पॉजिटिव हो जाएगा, सो 1 विल कैंसिल, विल बी n माइनस r factorial. Can I write this as n factorial? n into n minus 1 r minus 1 n minus r factorial. Multiply and divide by n minus r plus 1. Okay? So we multiply and divide by n minus r plus 1 n minus r plus 1. ये ऊपर as it is लिख दो। ये जो है इसका प्रीवियस टर्म है, इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो ये है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। नाउ can I write this as n माइनस, इसे माइनस कॉमन ले लो, r माइनस 1, इसे मैंने माइनस कॉमन ले, किधर, इधर नहीं, इस पे नहीं, ये तो अकेला है, ये तो मैंने जो मल्टीप्लाई डिवाइड किया था उसमें कुछ नहीं है, ये अपनी जगह, n फैक्टोरियल अपनी जगह, सॉरी, नाउ लुक एट दिस, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इनको क्लोज करके यू कैन राइट n combination r minus 1, and which is right hand side.
n minus r plus 1 into n combination r minus 1. Look at it. That's it. ऐसे ही करना है. Question number 2 भी इसी तरह ही है. My bad. 3. You jumped way too high. We'll do that. No worries. So you can do 3 by yourself. You have to do 3 by yourself. I'm gonna solve 4, okay? Then I will check it. 4 is n minus 1 combination r minus 1 plus combination n minus c r should equal n combination r. बस वही expand करते करते cutting shutting common शॉमन लेके खुद ही ये आ जाना है. So let's take left hand side. इसको expand करो this term तो हमारे पास आ जाएगा n factorial r minus 1 factorial n minus 1 minus r minus 1 factorial plus n minus 1 factorial r factorial n minus 1 minus r factorial. Okay, so n minus 1 factorial r minus 1 factorial minus will make this one positive, so it will cancel with it, so n minus r factorial plus n minus 1 factorial r factorial n minus 1 minus r factorial. Yes. हाँ किचन के मेरा ठीक है. हाँ ना ना पक्षे पक्षे. Look at this. इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? n minus r minus 1 factorial. और इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? r minus 1. अब this and this, these three are common in numerator and denominator. So I'm going to take n minus 1 in numerator and in denominator. इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? इससे एक कम, राइट? सो माइनस 1 आएगा ना? No, you never added. You when you हाँ we went backwards. वो उसमें प्लस चाहिए. आगे जाओगे तो नेगेटिव हो जाए. तो ये गया इधर रह जाएगा 1 by n minus r और इधर रह जाएगा 1 by r. Okay guys, so these guys as it is. LCM them. Okay, r n करें, so we left with n. N multiplied with this should be n factorial. Make sense? N minus r with this will make it n minus r factorial, and r into this will be r factorial. So r factorial and n minus r factorial, and this will become C combination. This is right hand side. समझ आ रही है कि मैं ऐसी बोली? Part 5 क्वेश्चन 1 का हमारे पास है n combination r plus n combination r minus 1 should equal n plus 1 combination r. So we take left hand side, we will expand it, so n factorial r factorial n minus r factorial plus n factorial r minus 1 factorial n minus r minus 1 factorial. Okay,
n factorial as it is. I can write r factorial as r into r minus 1 factorial ताकि यानी उस factorial same लाने होते ताकि common ले सकते. So I wrote r factorial as r into r minus 1 factorial because इधर r minus 1 factorial मौजूद है. Always common ऐसे ही ले कोशिश करते हैं हम क्योंकि factorial वाले को हम direct add subtract नहीं कर सकते. So you have to get rid of them factorial वाले terms. Ayan? Okay? n minus r factorial as it is. N factorial r minus 1 factorial minus r plus 1 हो जाएगा. So minus r plus 1 factorial. r minus 1 factorial. इसको लिख सकते हैं n minus r plus 1 और इसका n minus r factorial. So now you take this, this and this guy common. So n factorial r minus 1 factorial n minus r factorial left with 1 over r plus इधर आ जाएगा n minus r plus 1. So that's it. बाकी इसमें कितना कोई complications है नहीं. LCM लो तो n minus r plus 1 plus r बस आ जाएगा n. So r will cancel with r and we're left with n plus 1 divided by r into n minus r plus 1. So now n plus 1 into n plus 1 into n, so it will be n plus 1 factorial क्योंकि ये इसका previous term है. r into r minus 1 will be r factorial and n minus r into this will be n minus r plus 1 factorial. अब can I write ये n है, ये n है, ये 1 है, right? Can I write n plus 1 minus r? 1 पॉजिटिव है ना, n भी पॉजिटिव है और r नेगेटिव है. इसको क्लोज करोगे तो ऊपर n plus 1 आ जाएगा. क्लोज करने के लिए हम ऐसे करते हैं. हाँ, ताकि आपको पता चले कि this is n plus 1 minus r. Exactly. So ये आगे which is the right answer. कौन सी वाली की? कौन सा 10? ओ फ्यूचर की बातें कर रहा हूँ. फ्यूचर तो पहुंचने दो पहले. आगे का सोचना ट्रू दैट. इतना भी आगे मत जाके हमें पीछे छोड़ दे. 1 3 divided by n factorial. So we have to prove this guy is equals to this. So if I do the expansion of left hand side, that will be हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही एक्सपेंड करते जिधर से इजी होते हैं. अभी लेफ्ट हैंड साइड से इजी है, मैं लेफ्ट हैंड साइड से करूँ. इधर क्लोजिंग करके ये क्रिएट करना है, इधर एक्सपेंशन करके ये आ जाना है. So always go to expansion side. एक्सपेंड करते करते खुद ही क्रिएट हो जाता. So 2n factorial 2n minus n. Okay, expansion. Okay, 2n factorial को ऐसे लिख सकते हैं 2n minus 1 2n minus 2 लिख सकते हैं 2n minus 3 dot 5 3 2 5 4 3 2 1 and that's the end. Yes, n factorial अपनी जगह 2n minus n factorial, right? न्यूमिनेटर में इनमें टेक द इवन, यानी इवन को सेपरेट कर लो, इवन वालों को. दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन, दिस इज इवन एंड सो एंड सो फॉर्थ, जिसमें बीच में भी आएंगे ऑफ कोर्स. बट आई एम गोना राइट 2n minus 2 2n minus 4 dot 4 2. ज़्यादा दूर चले गए.
4 2, राइट, इनको सेपरेट कर दिया। जो बाकी रह गए विच इज 2n minus 1, 2n minus 3 and dot dot 3 and 1. Okay, odd divided by n factorial into n factorial. Okay, अब इनमें से 2 कॉमन ले लो। कैन आई टेक 2 कॉमन? ये n टर्म्स है, उसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 रेस्ट पावर n, इधर रह जाएगा n, n minus 1, n minus 2 dot 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 2 1, और ये अपनी जगह 2n minus 1, 2n minus 3 dot 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 3 and 1 by n factorial into n factorial. 2 raised to power n, can I write this as n factorial? n से start हो रहा है और 1 तक जा रहा है, so it will cancel with this guy, one of them, right? So let's write it then cancel it. So I'm going to write this guy as n factorial और वो अपनी जगह 2n minus 1, 2n minus 3 dot 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 3 1, n factorial into n factorial. One of them will cancel with n factorial, so I'm left with the 2n. इसको मैं पहले और इसको बाद में लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। So I'm going to write 1 into 3 into 5 dot 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 2n minus 3 2n minus 1 divided by n factorial, which is the right hand side. Is it? Yeah, it is. एक ही बात, you can do it. Okay. Question 7. Question 7 says that if n per combination p and n combination q are equal, then prove that p is equals to q and p plus q is equals to n. अगर n combination p बराबर है n combination q के, फिर प्रूव करो कि p और q आपस में बराबर है and p plus q is n. ये दोनों प्रूव करना है। फर्स्ट इसकी एक्सपेंशन की जाए तो बी n factorial p p है या n factorial n minus p. Okay, they cancel each other, same है, if they will cancel, cross multiply करो तो q factorial n minus q factorial should equal p factorial n minus p. बस, so this equals to this, q factorial is equals to p factorial, which is q is equals to p, and n minus q is equals to n minus p factorial, so n minus q is equals to n minus p. ये तो जीरो आ जाएगा। Can I do p is equals to n minus q factorial? So it will be p is equals to n minus q, so p plus q is equals to n. So by comparison, you can get this factorial same है, product same आएगा, and that's your answer. Wait, इन दोनों को इक्वेट किया या इन दोनों को डायरेक्ट भी कर सकते हो, इफ नॉट इन दोनों को भी इक्वेट करोगे यू विल गेट दिस गाय, और इन दोनों को सॉरी इन दोनों को कंपेयर करो या इन दोनों को कंपेयर करो यू विल गेट दिस गाय। कंपैरिजन किया कि फैक्टोरियल सेम है, सो यू कैन कंपेयर देम एंड इट विल गिव यू द सेम आंसर। अजीब ही क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट, किया उसने ऐसे ही इस तरह ही है या कुछ और तरीका है इसका?
7 I think. Expansion, cross multiply, comparison, वही किया जो हमने किया by comparison. ऐ फजूल क्वेश्चन, ये नहीं आएगा। चलो कुछ न्यू किया। 8 n combination r 2 into n combination r plus, sorry, r minus 1 n combination r minus 2 should equal n plus 2 combination r. This is a very lengthy question to be honest. हमने इन तीनों के एडिशन से ये लेके आना है, which ये एक्सपेंशन करते करते साल लग जाने, बट लेट्स डू इट फॉर द फन ऑफ इट। नहीं कर लेते। लेंथी है, कोई नहीं, कोई नहीं, हमारी राइटिंग तो माशाल्लाह प्यार, आपको पता ही है। लेट्स गो। n combination r combination, sorry, n factorial n minus r factorial plus 2 into 2 n factorial r, नहीं इजी है, सिर्फ एक्सपेंशन करनी है, फिर सेम फैक्टोरियल्स कॉमन लेने, एलसीएम लेने, खुद ये आ जाने जो नॉर्मली हम करते रहे। राइट, एन फैक्टोरियल सब में सेम है अल्हम्दुलिल्लाह, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनको थोड़ा ओपन कर लेते हैं, वन स्टेप एक एक्स्ट्रा कर लेते हैं। माइनस, सो एन माइनस आर प्लस 1 n minus r minus 2 n minus r plus 2। ओके, अब इनको सेम करना है किसी तरीके से, डिनोमिनेटर के फैक्टोरियल्स को। r फैक्टोरियल का नेक्स्ट टर्म ये आता है, और इसका नेक्स्ट टर्म ये आता है। हाँ, इसका नेक्स्ट टर्म ये आएगा और इसका नेक्स्ट टर्म ये आएगा, तो इसका नेक्स्ट टर्म और इसका नेक्स्ट टर्म लिखना पड़ेगा। समझ आ रही है? हाँ, इसी तरह इसका नेक्स्ट टर्म ये बनता है और इसका नेक्स्ट टर्म ये बनता है। सो लेट्स गो। इसका नेक्स्ट टर्म r minus 1 r minus 2 फैक्टोरियल। यस, ये अपनी जगह। इसका नेक्स्ट टर्म, सॉरी, इसका नेक्स्ट टर्म और इसका नेक्स्ट टर्म जो है वो ये बनता है, तो इसका भी नेक्स्ट टर्म लिखेंगे। और ये अपनी जगह, ये भी अपनी जगह। इसका नेक्स्ट टर्म ये बनता है, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ दिस फॉर दीज, और इसको इधर ही लिख दूँ। इसका नेक्स्ट टर्म इसका क्या बनेगा? +1, और नेक्स्ट टर्म n माइनस आर फैक्टोरियल। बस अब कॉमन ले सकते हैं, ऊपर से n फैक्टोरियल, नीचे से n माइनस आर एन n माइनस 2 n माइनस, सॉरी, r माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। सो r माइनस 2 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल। इधर रह जाएगा पहले टर्म में 1 बाय r इंटू r माइनस 1 प्लस सेकेंड टर्म में रह जाएगा 2, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, हमारे पास जाएगा r माइनस 1 इंटू n माइनस r प्लस 1, और नेक्स्ट में क्या रह जाएगा 1, ये खत्म हो जाएगा,
ये भी खत्म हो जाएंगे, ये दोनों रह जाएंगे n-r प्लस वन। So far so good। अब तीनों कैल्शियम लोगे तो थोड़ा टफ होगा। वी शुड डू टू, और फिर जिसका आंसर आएगा वो तीसरे के साथ। व्हाट डू यू थिंक, और शुड आई जस्ट गो फॉर थ्री? ही स्लीपिंग। तीन पता है तीन का क्या बनेगा? ये आंसर तो सेम ये आएगा। ये 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 एलसीएम बनेगा। डिनोमिनेटर में आएगा ना, हाँ, बाकी ये अलग। बाकी तो अच्छा। सेम है ना, ये इस तरह और ये इधर भी। या ये दो कर लो पहले, उसका जो आंसर आएगा फिर वो इसके साथ कर लो, बट आंसर सेम ही आना है। I'm going to take the total. Let's try. Okay. R, R minus 1, n minus r plus 1, n minus r plus 2। अब इसको डिवाइड करो इससे, तो क्या बच जाते हैं ये दोनों? ये उस ये आर फैक्टोरियल नहीं था? किधर है? ये नहीं, ये ये हमें पूरा आर फैक्टोरियल पूरा नहीं, पहले कहीं जो भी नहीं बन रहा, 1 2 3 तक तो कोई भी नहीं जा रहा आयान। पहले जो नहीं था। वन, वो तो सिर्फ यानी 5 into 6 make cannot make factorial unless it is going to, yeah, one of them has a factorial on it, अच्छा। so they cannot make a factorial. They are one after another but they cannot make factorial। Okay। आसान इधर देख, इसको डिवाइड करो इससे, इससे डिवाइड करोगे तो यू विल लेफ्ट विद दीज टू, so these two will multiply with 1, तो क्या हो जाएगा n minus r plus 1, बल्कि मल्टीप्लाई कर लो आपस में इनको, तो क्या आता है? एन स्क्वायर। ओ माय गॉड, n स्क्वायर। फाइनल बताओ, फाइनल आउटपुट बताओ, बहुत टाइम लगेगा, मैं बताता हूँ। उसने दो दो किए होंगे ना हसन। नहीं, उसने भी पता नहीं क्या किया उसने, रुको जरा। यहाँ पर है ना, इसने फैक्टोरियल बना दिया इनको। ये देखो ना, ये का ये आया है, ये है ना। बट ही फर्स्ट टू कैल्शियम, बाद में वो करना नहीं, पड़ेगा। वो स्टेप नहीं डाला होगा ना एलसीएम वाला। ये किया हुआ है, ये ये एलसीएम। एक्सपेंशन है ना, एलसीएम का स्टेप नहीं डाला हुआ इन्होंने। ये यहाँ प्लस प्लस ये तीसरी टर्म है पूरी, इधर भी नहीं किया हुआ एलसीएम। छोड़ो इसको, ना करो, वी हैव टू गो थ्रू आवर ओन वे जगह ऑफ। कम पड़ जाएगी। जगह कम, दिमाग पड़ जाएगा। नाइस हो गया, परफेक्शन। लेट्स मल्टीप्लाई देम। ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं बट जस्ट इंशाल्लाह। एन स्क्वायर एन आर टू बहुत डिटेल है। एन माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर जब तक चीज़ें कटती नहीं हमारे हाथों में, टू आर इन चैप्टर से एन माइनस आर प्लस। इसको डिवाइड कर लो अब इससे और इससे, so these guys are left, so 2r into n 2nr minus 2r square plus 4r। अब इसको डिवाइड कर लो इन दोनों से, so ये दोनों रह गए which is r into r minus 1, how much? r square minus r। I did it। अब let's cancel each other with whatever there is। n square का कोई अल्टरनेटिव है? ओ वाह, n square का तो कोई वो ही नहीं है। इतनी बड़ी गलती हो गई r square क्या है? है। कोई भी कुछ भी नहीं कट रहा। ना सर, ये सारा ऐड हो जाएगा ना, ऐड करेंगे। ओके।
एन तो अपनी जगह आ जाएगा, माइनस एन आर। एन आर किधर है, ये रहा, एन आर ही आ गया, ये रहा, ये रहा, कट गया। प्लस टू एन आर, माइनस माइनस ये तीनों गए। टू एन, एन किधर है, ये टू एन, एक एन इधर है, बस इधर ही है, एन एन एन, थ्री एन, ये भी खत्म हो गया। ओके, आर स्क्वेयर, इज देयर अनदर आर स्क्वेयर, यस। एंड दीज आर टू, ये और ये कट जाएगा, ये माइनस है ना, इसमें आर, दो आ रहे हैं ना, आर्ट्स में। ये आर, प्लस आर एंड माइनस टू आर तो कट जाएंगे। माइनस, ये आर है सिर्फ, हाँ, टू आर माइनस आर कैंसिल, टू, ये फोर आर किधर से आ गया, फोर आर बच जाएगा, और टू भी बच जाएगा। ओह माय गॉड, इस टू के साथ कुछ था, ये टू एन है, बचता है टू। सही है। टू था नालायक, इट्स टू। ये फोर आर कहाँ से आ गया? फोर आर नहीं है यहाँ पर, यहाँ तक हम ठीक जा रहे हैं। क्या क्या है, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस टू। एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस, फोर आर कटना चाहिए ना, यहाँ पर ऊपर एन फैक्टोरियल भी है। अच्छा वो बोला होगा। ये फोर आर कहाँ से आया, मेरा ये समझ नहीं आ रही मुझे। ये एस तो प्लस तो नहीं लिखना था। ओ हाँ, ये फोर आर नहीं फोर बनता है, ओ नहीं, व्हाट द हेक, कुछ समझ नहीं आ रही। जब ये और ये खत्म हो जाएगा, आर ये मल्टीप्लाई होगा लास्ट टर्म राइट, मल्टीप्लाई किया ना आपने। आर इंटू टू, टू एन आर, आर इंटू आर, आर स्क्वेयर, फोर आर बनता है। दिमाग खराब। मेरे साथ भी हुआ है। क्या ओके, फोर आर क्या है? अब क्या करें, इट्स नॉट कैंसल्ड। तो अब वो चेक कर लेना, यहाँ से मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म को, क्या पता उसमें कोई मिस्टेक हो। नहीं है ना, जो लास्ट टर्म मल्टीप्लाई की, ये जो ये है ना, क्योंकि लास्ट वाला ऐसा एन था। इंटू एन एन स्क्वेयर, n into r minus r, n into 2, 2n, r into minus r into r plus r square, n into 2 minus 2r. क्या बोला था मैंने, देखा समझते हैं ये लोग। इधर से टू कट जाएगा तो टू आर रह जाएगा, नहीं फिर भी नहीं, आर टू आर नहीं आना चाहिए, आर सबर, आना ही चाहिए था। और 1 into n, 1 into r minus r, 1 into 2, 2, okay, okay, perfection। इन दोनों को काट दो, इन दोनों को, तो r into n with this 2, 2rn, with this 2, 2r into r minus 2r square, and 2 into r into 2, 4r, okay, correct। And then, oh, question गलत है शायद, मैं ये सोचा था कि is there a number with this guy, check, no there is no number, बस इसके साथ number right, टू है बस। 2 है, okay, फिर correct है, okay। So जब इससे डिवाइड करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो r इंटू आर, आर स्क्वेयर माइनस आर, ओके करेक्ट हो गया, माइनस टू आर एंड फोर आर, माइनस आर एंड प्लस फोर आर, ओ माई लॉर्ड, व्हाट द हेक इज दिस, माइनस तो बीच में नहीं है, नहीं, हाउ ही कैंसल्ड फोर आर, ये तो टू आर बच जाता है, ये है ना इनका मल्टीप्लिकेशन, इनके ये टर्म्स आप इनसे मैच कर लें, ये एन स्क्वायर होगा। फोर आर, गलती की है इसने। फोर आर किसके साथ कटा है, ये एक आ रहा है,
-3r। ये 4, ये एक और माइनस है ना। ये एंड पे आर ये रहा ना हमारा, -4r, हाँ पर माइनस ये आर, -2r और -r, तो 3 बन रहा है ये ना। कट गया ना, जीरो हो गया। इट्स रियली बैड। कितना छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ वो है। नाउ एन व्हाट। आर खत्म हो गया बस। अब अब चल रहा है, सही है। सही चल रहा है। ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन करो n² 3n+2 की, तो क्या आता है? कीटर। एन प्लस वन एन प्लस टू। n+1 n+2 r, r-1 n-r+1 n-r+2। ओके। अब देखो, n into n+1 into n+2, this will make n+2 factorial। ये उसके दोनों प्रीवियस टर्म्स हैं। r-2 into r-1 and r will make, आर माइनस टू फैक्टोरियल। यानी ये r है, r into -1 और फिर r-2 r फैक्टर, यानी these three will make r factorial। This will make n minus r plus 2 factorial, क्योंकि ये सबसे पहले, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये आता है। So we will make n minus r plus 2 factorial। Now कॉमन ले लो ना। I can write this guy n minus, sorry, n plus 2 minus r, n plus 2 minus r, और इसको क्लोज कर सकते हैं n plus 2 r, which is right hand side। Yes। Question 2। सर जी x की पावर 1/2 इंटू एक्स क्यूब क्या होता है? मुझे क्या पता? जीरो दे देने मैंने खुदा मत तुझे, अपने काम से काम रख। n combination 5 equals n combination q of 8। You have to find the value of n. You have to find the value of, to expand this, n factorial, I factorial, n minus 5 factorial, right? Sorry, n factorial, 8 factorial, n minus 8। n factorial cancels with n factorial. इसके next three terms will make n minus 8. So I'm going to write n minus 5, n minus 7, n minus 8 factorial। इसको भी एक्सपेंड करने से वही होता है ना। नहीं, उसे करना ही वो होता है। नंबर है वैसे ही कट जाने। इसमें से भी हो सकता है ना, ऐड मतलब वो करके 7। और n minus 8 कट जाएगा, फैक्टोरियल खत्म हो गया। ओके, सो इन सबको उधर ले जाओ, 8 को उधर ले जाओ। 8 factorial is equals to 5 factorial into n minus 5, n minus 6, n सर minus ये 7। वेरिएबल है या कांस्टेंट है? लेकिन कांस्टेंट ये है। जो एडी है ये कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। हाँ, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 8 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, whatever you get, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये 6 है। ओके, n into n, इन दोनों को मल्टीप्लाई, if you multiply these two you will get n square minus 11n, 5 6 are 6 30 30, नहीं है, 30 आता है। 30 आता है, चेक करो। 8 factorial divided by 5 factorial, how much you get? 8 sevens are 8 7 54, कैलकुलेटर का है। into 6, दिमाग में काम करो। calculator। 8 54 into 6 वो हो सकती है। रोहन calculator दे दे। ओके, ओके, मिल गया, मिल गया। 324 320, 4 sure। 8 factorial divided by 5 नहीं, factorial, 58 7 56 होता है। 56 इंटू 56 इंटू क्या? 6,
56 into 6 336 कोई फर्क नहीं। अब देखो n into n n cube n into 11 n square अच्छा ये सारे वैसे ही होंगे 13n जो प्रीवियस साइज में minus n square हुए। plus 77n 7 into 30 7 into 30 अस्तगफिरुल्लाह 210 7 into 30 210 so 336 n cube अपनी जगह minus 11 minus 7 -18 30 and 77 110 107 exactly and minus 120 and plus 120 no 210 220 plus 336 210 sorry plus 336 546 is equals to 0. So this is our equation. We have to find, wow, here you are going, you have to find n, but it is not quadratic. synthetic division So अब इसको किस से synthetic करेंगे? How would we know? We will cheat from calculator. हाँ सर क्यूब का obviously फॉर्मूला चीटिंग कर सकते हैं नहीं, या नहीं आते? क्यूब का फार्मूला तुझे क्यों नहीं आता? उस दिन तूने बोला था हमें नहीं आता, हमें सीखना चाहिए. मैंने कहा हाँ सीखो, जरूरत पड़ सकती है. 4 क्या वैल्यू है? 1 minus 1 8 13 so we'll use 13. So इसकी करेंगे सिंथेटिक डिवीजन किससे? -13 नहीं होगा ना सिर्फ 13 13 से. किससे करेंगे? 13 So using सिंथेटिक डिवीजन क्या है? 1 18 107 minus 446 किससे डिवाइड करेंगे? So 1 into 13 कितना आ जाएगा? Into 13 क्या 13 into 5 13 into -5 -65 so -65 plus 107 42 42 into 13 546 0. तो यहाँ पे चला जाएगा n minus 5n plus 42 is equals to 0. इसको करोगे तो ये कॉम्प्लेक्स आ जाएगा. करो. n स्क्वायर नहीं करेंगे जी कॉम्प्लेक्स है So क्या है कॉम्प्लेक्स? Complex. So our answer is n is equals to प्लस माइनस यस 13. So let's do question number 2 part 2. Question number 2 part 2 is 15 7. क्या रूल हमने सीखा था? n combination r is same as n combination n minus r. और n की वैल्यू बड़ी होगी नहीं होगी r की वैल्यू बड़ी होगी r की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए. यहाँ पास रह जाएगा कि 15 is equals to r and n minus r is equals to 7. इसको मैंने r ले लिया और इसको मैंने क्या लिया? n minus r. So हमारे पास r की वैल्यू आ गई तो n will be equal to 7. So r की वैल्यू हमारे पास आ गई 15. So 15 is equal to 7. So n is equals to 7 plus 15. That is 22. तो n की वैल्यू आ जाएगी 22 और r की वैल्यू क्वेश्चन में है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. So n की वैल्यू क्या है? 22. Okay? So far so good? इसी तरह you can do question number 3 भी same तरीके से. I'm going to solve question number 4. 2n combination 3 n ratio n combination 3 is equals to 11 combination 1. So combination को expand करो 2 factorial 2n factorial 3 factorial 2n minus 3 factorial ratio है ना, which is division. रेसिप्रोकल Next time अगर or if you understand it I will take reciprocal directly. तो ऊपर आ जाएगा 3 factorial n minus
3 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल, 11 by 1 ratio. So 3 cancels with 3 rest, right? Or can I write this as 2 factorial separate and n factorial separate? No, you cannot. Or can you? Can I expand this to 2n, 2n minus 1, 2n minus 2n minus 3 factorial? Okay? 3 तक ताकि ये इसके साथ कैंसिल हो. Similarly इसको एक्सटेंड कर लो. ओके, तो बस आ जाएगा 2n. इनमें से नो, यू हैव टू मल्टीप्लाई them. That is the only possibility. इनको मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट 2n को साइड पर रहने दो. 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर, 2n इंटू 2 प्लस 4n माइनस n 2n n प्लस 2. ये डिनोमिनेटर मैं साइड पे लेके जा रहा हूँ. ओके, सो विल बी 11n इंटू n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन. नाउ मल्टीप्लाई 2n. By the way, no, you cannot. Or can I? Divide both sides by n. n और n कट जाएगा. अब आ जाएगा 8n स्क्वायर, 8n minus 4n plus 2, 11n square minus 33n plus 22. Nice. Okay. इनको इधर ले जाइए, उनको इधर ले आओ. Whatever suits you. उनको इधर ले आओ. 8 minus 11 minus 3 n square. 8 minus 4, ये n है. This is n. 2n 2n. हाँ, 8 minus 4 4 और प्लस 33 37n. 22 4 minus 22 minus 80. So इसको करो काइंडली क्वाड्रेटिक से. तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या क्या है? -3 37 -80. -8 -11.8 0.5. डेसिमल में नहीं आया चाहिए. राउंड ऑफ करके 12 लिख लो. और दूसरी क्या थी? 0.5. वो तो कभी भी नहीं. 1. ये भी गलत है क्योंकि शुड बी ऑलवेज होल नंबर. कोई गलती की है हमने. चेक करो उसका आंसर क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4. इसका आंसर है गलत है यहाँ से. 3 और 6. रियली? 1 and 6. Yeah. हाउ? तो बड़े सिंपल से निकला. दैट्स व्हाट वी डिड. व्हाट? ये रहा सॉन्ग. ये स्टार्ट. हमारा यहाँ तक तो सही है. 8 and square cross multiply. 8 नहीं है. ये ऐड होना चाहिए थी. हाँ, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है. ये ऐड होना चाहिए. 11 33 एंड 22, राइट? 2 into minus, oh ये हाँ, my bad. 2n into -2 -4. So this will be, no, 2n into 2 4, 2n into -2 -4n, -1 into 2 -2, and minus, so this will be -6 -4 है ना.
और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। तो 8 एंड 4 तो ये हो जाएगा -12। -12 -12 एंड +33। 33 -12 करो कितना आता है 21। अब कर -18। ये +21 है। हाँ माय बैड। -18। ओके, एक स्मॉल प्लस माइनस की वजह से डू दिस 5 बाय योरसेल्फ सेम तरीके से। आई एम गोना सॉल्व 6। ओ हाँ ओके। अब बस ये था ना, अगर n 1 आ जाए सपोज, तो 1 कॉम्बिनेशन 3 कभी नहीं हो सकता, बिकॉज क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल एंड 1 माइनस 3 फैक्टोरियल, वो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, और फैक्टोरियल कभी नेगेटिव नहीं होता। सो यू कैन नॉट टेक n वैल्यू 1, यू हैव टू टेक इट 6। तो 1 को निगलेक्ट कर लेंगे हम। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। यल्ला खैर। 2n combination 3 n combination 2 12 ratio 1। सेम तरीके से अगेन 2n factorial 3 factorial 2n minus 3 factorial ratio बल्कि multiplication 2 factorial n minus 2 factorial by n factorial 12 by 1। okay, excellent। expand 2n 2n minus 1 2n minus 2 2n minus 3 factorial 3 factorial is 6 3 factorial is 6 2 factorial is 4 n minus 2 factorial n को लिख सकते हैं n minus 1 2 factorial is equals to 12। So far so good। N cancels with n, this cancels with this, n minus 2 factorial cancels with n minus 2 factorial। 2n minus 1 into 2n minus 2, so be 2n, sorry, 4n square minus 4n minus 2n plus 2 into 4, 6 n minus 1 equals to 12। Okay, so far so good। इसको इधर ले जाओ, 4 मल्टीप्लाई कर लो 16 minus 4 minus 2 minus 6 6 into 4 24n plus 8, right। ये उधर जाएगा 6 into 12 72n minus 72 n minus 1 के साथ मल्टीप्लाई। ओके, 16n square for 2 72 plus 24 96n plus 7, this will be 8। Okay, how much you got? 5 1 Again same, you take this guy rather than this। Okay, so you're done with that। Question number 3 देखो। Question 3 say find R। 15 combination 3 is equals to 15 combination R plus 3। Okay,
As n and n are same, right? C भी same है. Can I write this as n combination r, n combination n minus r? तो इसको बोल देंगे कि r इज इक्वल टू 3r. नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, उसको कुछ और नाम देना पड़ेगा. लेट्स एक्सपेंड इट. 15 फैक्टोरियल 3 सॉरी 3r फैक्टोरियल 15 माइनस 3r फैक्टोरियल. ये तो एक्सपेंड ही नहीं होगा और ये कभी आएगा नहीं. So we have to go with the thing I was doing. Let's do. जिससे तो नहीं होगा ये. Just use n r n combination n minus r. By the way, ये कब यूज करना है? जब n सेम हो. ओके. 15 15. हाँ, ये क्या हो गया? n n n n n n 15 15 same. When it's same, ऊपर वाला same है. यानी n की वैल्यू सेम हो. Same है. So we take this as 3r is equals to r and n minus r is equals to r plus 3. n की वैल्यू कितनी है? 15, right? So r उधर ले जाओ, 3 इधर ले आओ. 12. So 6 is r value. इसको क्यों नहीं यूज किया हमने कैलकुलेटिंग r? क्योंकि इधर r कैंसिल हो जाएंगे आपस में. So it's not good. इसकी वजह से चेक करो, आंसर सेम है. 6. R is equal to 6. Yep. सामान क्या है? 3 का पहला पार्ट. गलत है. R is equal to 3. क्या गलत किया मैंने? और r की वैल्यू 3r ली है उसने. Exactly. ऐसे किया. G. Put 3R. R की वैल्यू R की जगह पे डाली. फिर इसको r नाम ना दो, क्योंकि अगर इसको r नाम दे रहे हो ना तो इट विल बी, इसको बोल दो r1. फार्मूला के जो एक्सपेंशन है उसको नाम क्या दे दो? r1 दे दो. मेरे देखो, इसको डिफरेंट नाम दे. दिस इज r1. So r1 should equal 3r and n minus r1 should equal r plus 3. Now r1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 3r. So हमें r की वैल्यू मालूम करनी है. So n minus r1 की जगह आप लिख सकते हो 3r. So n minus 3r को ले जाओ, फिर भी 4r plus 3. n की वैल्यू कितनी थी? 15. So 15 और 3 इधर ले आओ, so it'll be 12. So 4 divide करो, so 3 will be r value. So r value here will be 3. Okay? वाह, अयान को देख के मुझे नींद आ रही है, उसकी हालत इतनी खराब है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका. 8 combination r minus 7 combination 3 7 combination 2. सेवन कम्बिनेशन 3 को उधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? 7 कम्बिनेशन 3 प्लस 7 कम्बिनेशन 2.
आर सिर्फ इधर है या 7 factorial 3 factorial 7 minus 3 4 factorial 7 factorial 2 factorial 7 minus 2 5 factorial 7 कॉमन ले लो क्या कॉमन लो 7 कॉमन ले लो ऊपर से नीचे से क्या कॉमन लो कैन आई राइट दिस एज 2 factorial into sorry 3 into 2 factorial इसको लिख सकते हैं ना 3 into 2 factorial obviously. let's do this step then do it इसको लिख सकते हैं 3 into 2 factorial 4 factorial अपनी जगह 5 को लिख सकते हैं 5 into 4 factorial now न्यूमरेटर में 7 factorial नीचे से 2 factorial and 4 factorial कॉमन लो तो you are left with 1 by 3 plus 1 by 5 so far so good 3 into 5 will be the LCM 5 और 3 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 8 8 8 into 7 8 factorial 3 into 2 3 factorial 5 into 4 5 factorial 8 combination R right so far so good 8 combination R can I close this as 8 3 5 8 से क्या माइनस करके 5 आता है 3 ओके अब ये सेम है 8 so you can say this is R R minus L N so R is you get R R1 is R and R minus is equals to 3 so R1 की वैल्यू है R इधर डाल दो R1 will be equals to N की वैल्यू कितनी थी 3 मैं लाइक 8 है so R1 कितना आ जाएगा 11 तो R की वैल्यू कितनी है 11 सलाम I was about to finish it I was about to say do yourself okay so N combination 3 plus N combination मैं इसको उधर ले गया हूँ ओके ये लिख दिया is equals to 8 combination R he is saying literally कि अगर आपके पास हो N N सेम है ना N और एक R हो और इन दोनों में फर्क सिर्फ 1 का हो क्योंकि अगर इससे 3 से 1 माइनस करें तो 2 आ रहा है ना अगर ऐसी सिनेरियो हो कि N सेम हो और इन दोनों में फर्क सिर्फ 1 का हो तो दे आर इक्वल टू N plus 1 combination R इनमें फर्क 1 का है यस 1 का फर्क है R में नालायक R में फर्क देख अच्छा R में R कितना में फर्क बड़ा 3 और 2 में भी 1 का ही फर्क है तो उसी की बात कर रहे हैं ना तो R और 2 में उसमें 2 N की फर्क नहीं R की फर्क का बात हो रहा है अगर N सेम है और R फर्क इधर देखो ना N सेम है और R में 1 का फर्क है then it is equals to N combination 1 sorry N plus 1 combination R तो अगर ये 3 है और ये R minus 1 2 है
सो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, अब 1 उधर ले जाओ तो अगेन 3, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आर है ना, कंपैरिजन करेंगे, की बड़ी वैल्यू होती है। या तो आर 3 होगा या आर माइनस 1 2 होगा, दोनों दोनों से आंसर सेम आ रहा है, आर 3 आर। क्या किया हमने चेक? कंपैरिजन की, अगर ये कंडीशन आ जाए, ओके। ये कंडीशन, ये वाली, ये जो कंडीशन है अगर ये आ जाए तो इसके बराबर होता है। ओके, हमारे लिए ये कंडीशन आ रही है 3 और 2, तो वी विल कंपेयर द वैल्यूज, तो आर विल बी व्हाट 3। 3 डायरेक्ट लिख सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो कि आर माइनस 1 शुड इक्वल 2, 1 उधर ले जाओ तो 3, सो बोथ गिव्स यू द सेम आंसर, सो आर इस तरह डायरेक्ट मालूम किया उस। हाउ अबाउट दैट, हाउ अबाउट दैट, ये तो आसान है, एन एन सेम है ना, ये देख, हसान एंड अयान, एन एन सेम है 16 and 16, so हाँ तो n, if this is r this would be n minus r, तो एक r हो जाएगा r equals r, और एक हो जाएगा n minus r is equals to what, r plus 4, तो r की वैल्यू r डालो तो n, r उधर ले जाओ तो कितना आ जाएगा 2r plus 4, n की वैल्यू कितनी है 16, तो 16 minus 4 is equals to r 12, so r will be equals to 6, तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। इसमें भी सेम कर, नहीं इसमें नहीं लगा, ये तो रेशो एक्सपेंड करके कटिंग करनी पड़ेगी, इन दोनों को सेपरेट एक्सपेंड करोगे तो जैसे मैंने ये किए थे रेशो और कटिंग। पार्ट 1, ये लेंथी क्वेश्चंस है, मुश्किल नहीं है, बस लेंथी है। n कॉम्बिनेशन r माइनस 1 रेशो n कॉम्बिनेशन r, रेशो n कॉम्बिनेशन r प्लस 1 is equals to ratio 6 combination 14 6 combination 14 and 21, to find the value of n and r। हम दो दो कंपेयर करेंगे, उसी एक इक्वेशन बनेगा, फिर जो दो इक्वेशंस आएंगे उनसे उनके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके n और r की वैल्यू मालूम करेंगे। The ratio of this to this is same as the ratio of 6 to 14. Similarly, the ratio of this to this is same as 14 to 21. So I'm going to take first two these guys, उसी की equation बन जाएगा, फिर then I'm going to take these guys with these guys and it will should give me the same answer. So I'm going to take n combination r minus 1, sorry, ratio n combination r 6 combination 14. Okay, combination is n factorial r minus 1 factorial n minus r minus 1 factorial, ये division है right, when you change into multiplication तो इसका opposite आएगा combination का, which will be r factorial n minus r factorial divided by n factorial, make sense, and 6 by 14, n combination, why write it twice, n combination cancels with n combination, okay, n minus r है right, इसका next term क्या आएगा, इसको माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी माइनस आर प्लस 1 राइट, इट विल बी माइनस आर प्लस, और उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा कि माइनस आर प्लस 1, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसे ही होगा आसान, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो कुछ भी नहीं है, 6 by 40 which is 3 by 2 7 right, this guy cancels with this guy cancels with this, I'm left with r by n minus r plus 1 is equals to 3 by 7, cross multiply them, 7r is equals to 3n minus 3r plus 3, 3r इधर ले आओ तो भी 10r is equals to 3n plus 3, तो एक इक्वेशन आ गया, okay, so far so good. Now I'm going to compare this and this, so I'm going to do n combination r plus, sorry, ratio n combination r plus 1,
should equal 14 ratio what? 21. True? N combination R is n factorial, R factorial, n minus R factorial. इसको multiplication में change करो so opposite आएगा. It will be R plus 1 factorial and n minus these guys, right? Which will be minus R and minus 1. मैंने direct minus कर दिया दोनों को, okay? Hassan and Ayan, 14 by 21. So now n cancels with n factorial. इसका next term जो है वो r factorial है और इसका next term जो है वो ये है. So I'm gonna write r factorial. इसका next term जो है क्या है? n minus r into n minus r minus 1 factorial. ये जो है अपनी जगह. Sorry, इसका next term जो है वो है r plus 1 into r factorial and n minus r minus 1 factorial is equals to 7 2s are and 7 3s are 21. This guy cancels with this guy cancels with this. R plus 1 divided by n minus r is equals to 2 by 3. Cross multiply them. Hello? Walaikum salam. आगे? Okay, 1 minute. So cross multiply, so 3r plus 3 is equals to 2n minus 2r. Make sense? 3r is the 5r is equals to 2n minus 3. From this, इसकी वैल्यू r की मालूम कर लो या इससे मालूम कर लो. इसकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी? r is equals to 3n plus 3 divided by 10, right? So I'm going to substitute it here. So instead of r, I'm going to write 5 into 3n minus 3 plus 3 divided by 10 is equals to 2n minus 3. Okay? 5 2s are 10. 2 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लो तो 3n plus 3 is equals to 4n minus 6. 4 इधर ले आओ या 3n उधर ले जाओ 6 इधर ले आओ 6 plus 3 9 and 3 4n minus 3 तो n की वैल्यू क्या है ये 9 and I'm going to substitute it here r 3 9s are 27 plus 3 30 divided by 2 तो r की वैल्यू 3 आ जाएगी और n की वैल्यू क्या है ये. Question 4 part 2 3 and 4 do yourself. Okay, same as 1 part 1. Question number 5. Question number 5 says what? It says that in how many ways can 11 player be chosen out of 16 if there is no restriction. कोई restriction नहीं है हमारे पास 16 players उसमें 11 choose करने तो 16 combination 11 calculator if not तो 16 factorial divided by 11 factorial 16 minus 11 factorial but you don't have to do this if you have calculator just do 16 combination 11. How much you got? 4 3 6 8. Khalas. Part 2. The particular player is always chosen. एक प्लेयर हमेशा टीम में होना चाहिए. सपोज वो शाहिद अफरीदी है. So शाहिद अफरीदी should have यानी कुछ भी जो वो टीम में होना चाहिए. So अब क्योंकि 16 टोटल थे राइट एक हमने फिक्स कर लिया कि he has to be there तो ऑलरेडी चूजन है और चूज हम कर कितने करते हैं 11 तो अब हम 16 में से 11 नहीं 15 में से 10 की चॉइस हमारे पास रह गई क्योंकि एक तो फिक्स हो गया he has to be there. पार्ट 2 कर रहे हैं ना लाइक 1 का आंसर आ गया है क्या हो गया so this will be 3003. so इतनी चॉइसेस होंगी हमारे पास फिर टीम बनाने की फैक्टोरियल लगाना नहीं है सॉरी ओके चेक करो आंसर ओके एक्सीलेंट. Question 6. Out of 5 men, 3 women and 3 women, a committee of 3 has to be formed. Committee में कितने members होने चाहिए 3 members होने चाहिए.
इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी फॉर्म इफ एटलीस्ट वन मैन इज सेलेक्टेड, यानी बगैर वो मैन की कमेटी नहीं बननी चाहिए, वो लाजिम एक, एटलीस्ट बोले एटमोस्ट बोले, एटलीस्ट यानी मैन हमेशा, कुछ भी हो जाए एक तो होना ही चाहिए। So, हमारे पास कितने कंडीशंस बनेंगे, देखो इधर देखो अयान, एक मैन, टू वुमेन, टू मैन, एक वुमेन, नो वुमेन एट ऑल, क्योंकि मैन की जरूरत है, वुमेन मस्ट नहीं है, तो मैन एटलीस्ट है। सो हमारे पास कितनी कॉम्बिनेशंस बनेगी के, और बाय द वे फिफ्थ 5 मेन से और 3 वुमेन से, ओके। पहली कॉम्बिनेशन हम करते हैं, अगर दो मेंस, एक मैन लिए जाए और दो, क्योंकि कमिटी ऑफ 3 मेंबर्स है ना, तो एक मैन लेंगे और दो, सो क्या हो जाएगा, 5 से एक चूज करो और 3 से 2, दिस बी अ कमिटी जिसमें एक मैन होगा और दो वुमेन, अ कमिटी ऑफ जिसमें दो मैन और एक वुमेन होगी, अ कमिटी जिसमें सारे मेंस होंगे, इसकी जरूरत ही नहीं है वैसे, क्योंकि उसकी चॉइस का तो कोई जरूरत ही नहीं है, सो डोंट राइट इट। सो दिस इज एटलीस्ट का मतलब ये होता है कि लाजिम एक मैन होना चाहिए, फिर लाजिम दो, और फिर सारे के सारे मैन हो जाए, वुमेन के मस्ट होना। So you will solve this, and then you will all add all the combinations. How much you got? 30. 5 combination 2, 3 combination 1. Again 30. Okay. 5 combination 3. Yep. 10. तो टोटल कितनी combination बन जाएगी? 70. इसने कुछ गलत किया, 15 30 इसने गलत किया कुछ, अच्छा 5 1 है पहले देखा, शायद। इसने गलत किया है, combination 15 आता है, ये नहीं गलत हो गया, कितना आ जाएगा? 55 adding all the first combination come out to be 15 not 30. समझ आइए, एटलीस्ट का मतलब मतलब सारे पॉसिबल करना कम से कम मैन के लिए, यानी बिकॉज मैन कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर इन एग्जैक्टली मोस्ट की बात होती ना, मैक्सिमम तो मैक्सिमम और फिर खत्म, है ही नहीं, ये आएगा, एटलीस्ट और मोस्ट में बहुत फर्क है, बी केयरफुल। एटलीस्ट का मतलब एटलीस्ट विद मेन कम से कम नहीं, हमेशा मैन नहीं, कम से कम, एटमोस्ट ज्यादा से ज्यादा, ओके, और मोस्ट में क्या होगा वैसे ज्यादा से ज्यादा, वो आएगा अभी, कंडीशन आएगी तो आपको समझ आ जाएगी। अ कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू फॉर्म आउट ऑफ 6, यही है मेरे ख्याल से, 6 मैन 4 वुमेन, 5 मेंबर्स जिसमें 6 मैन और 4 वुमेन से सिलेक्शन करनी है हमने। 6 में लीस्ट में मोस्ट है हाँ, में इन हाउ मेनी वेज कैन इट, उसमें कुछ ऐसे नहीं था, ये डिफरेंस है ना फिर वो हमेशा तो ऐसे नहीं होगा लिस्ट मोस्ट है ना, कॉम्बिनेशन जो होती है ना वो मोस्टली ग्रुपिंग होती है, मोस्टली क्या होती है, ग्रुपिंग ऑफ पीपल, जो परमुटेशन होती है वो क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, ग्रुपिंग ऑफ पीपल, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। In how many ways can it be done if it has exactly 2 men, 2 women, at least 2 women, at most 2 women? पहले में तो सिंपल है कि एग्जैक्टली 2 वमेन है और 2 से ज्यादा, कम ज्यादा नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कितने मेंस हैं हमारे पास और कितने वमेन्स हैं हमारे पास? मेंस 4 है, 6 है, और वमेन्स 4 है, और मेंबर्स कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स होने चाहिए, ओके। तो पहले चॉइस में ही सेड कि वुमेन लाजिम 2 होनी ही चाहिए, सो 4 से 2 तो सिलेक्शन लाजिम होगी। अब हमारे पास कितनी सिलेक्शन रह गई है, और कितनी रह गई है, 5 मेंबर्स बनाना है, 3 तो 6, तो मेन 3 सेलेक्ट होंगे, तो ये पहले का आंसर है, विच विल बी, प्लीज करेक्ट करना, 6 कॉम्बिनेशन 3 एंड 4 कॉम्बिनेशन 2। सो दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन उसने दी है कि एटलीस्ट 2 वुमेन, एटलीस्ट 2 वुमेन होना जरूरी है, तो पहले 2 फिर 3, यानी वुमेन का होना लाजिम है। इधर देखो गाइस,
ये वोमेन के लिए लिख रहा हूँ क्या, 4 से 2, यानी एटलीस्ट का मतलब है कि वोमेन कम से कम 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, यानी 2 से कम नहीं जानी चाहिए वोमेन्स, 2 से कम नहीं जानी चाहिए वोमेन्स, यानी वोमेन कमी 1 नहीं हो सकती। इट विल बी 2, 3 एंड 4 सारे यानी अपर जाना है, नीचे एटलीस्ट 2, यानी 2 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप सेलेक्ट कर लो वुमेन 2, तो मेन कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3। अगर आप वुमेन सेलेक्ट कर लो 3, तो मेंस कितने करेंगे मैं, 2। और अगर आप 4 कर लो तो मेन कितने करने पड़ेंगे, 1। सो इन तीनों को करके फिर ऐड कर लेंगे, तीनों कंडीशंस एटलीस्ट। पहले का 126 3 4 2 ये तो आ गया था ना 120, ये कर ले 6 2 4 3, 4 yeah 3 16, 60 60 half of that, 30, no, not sure. 4 combination 4, which should be 1, 6 combination 1, that is okay. So total कितना आ जाएगा, 186, right? So this will be the at least woman वाला, and at most woman का एग्जैक्टली 2 में सिर्फ एक ही कंडीशन रहेगी ना। exactly, और at least woman में 3 आ गए, at most woman यानी woman अभी 2 उससे ज़्यादा नहीं, तो 2 1 और no woman at all, तो क्या आ जाएगा वोमेन्स का, क्या आ जाएगा कि 4 combination 2 combination 1 and no women at all, जिसकी लिखने की जरूरत नहीं है बस। तो जब 2 वोमेन्स होंगे तो मेंस कितने होंगे, 6 3 सॉरी 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4, और नो वोमेन एट ऑल तो 6 combination 5। ओके, सो ये सारे कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे, पहले का तो 120 आ जाएगा, राइट, इन 6 क्या 6 4 है 6 4 and 4 1, 60 6, 60 4 6 5 this should be 6, 7 186 एट मोस्ट और उसमें सेम ही आया, चेक करो आंसर। 116 सही है, 186 186 and 120, right? So that's how you solve this question. Question number 8 देखो, there are 10 points on a circle, find the number of one lines, two triangles that can be drawn। हाँ, weird question but good question। हाँ बस सर्कल है जिसपे कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट्स हैं। अब ही सेइंग कि आप अपोजिट लाइंस को ज्वाइन करके कितने लाइंस, यानी सॉरी माय बैड, अपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करके कितने लाइंस टोटल बना सकते हो। सो दैट विल बी 10 combination 2। why 2, why 2, ये दो पॉइंट्स मिलाने हैं 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, सो दैट्स व्हाई। इफ यू समझ आ रही है ना, सो हाउ मच इट विल बी 45 45 45। इफ आई हैव टू मेक ट्राइंगल ऑफ आउट ऑफ इट, तो कितने लाइंस ज्वाइन करनी पड़ते हैं पॉइंट्स, 3 सो 10 combination 120 1 20 20, so 45 and 120। मल्टीप्लाई नहीं नहीं, सेपरेट लाइंस इतने बनेंगे और ट्राइंगल्स इतने बनेंगे। गुड गुड थिंग, गुड टू नो। बुक किधर है, सो यू हैव नो डाउट इन 9, 8 9 9 9 9 में है 9 में ही डाउट है। लेस लेस n कहाँ से आया ओके लेट्स
Find the number of diagonals in an n-sided polygon. n-sided polygon में diagonals कितने होंगे? Before that, look at this. If I say draw five-sided polygon, 1, 2, 3, डेफिनेशन क्या होगी? कोई भी शेप more than four, more than four, पॉलीगॉन में and equal, यस ये इक्वल पॉलीगॉन में सीधी लाइन और बगैर कर्व नहीं सीधी लाइन और क्लोज्ड शेप वो होता है ना पॉलीगॉन more than four straight lines. Okay, look at this. Five-sided shape बनाया हम लोगों ने. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry, six-sided shape बनाया हम लोग. अब इसके कितने sides हैं? 6. उसने क्या बोला है? Find the number of diagonals in the n-sided. हमने six-sided लिए. Diagonal क्या होता है? From one, यानी this is also diagonal. This is also diagonal. This is also diagonal. This is also diagonal. These are all diagonals, right? So he's saying कि कितने diagonals बनेंगे? What do you think इसमें कितने diagonals होंगे? How many sides do we have? 6 और कितने को मिला के हमारे पास मिलता है? 6 Diagonal is a straight line, right? So six side, right? और कितना choose करते हैं at a time? Side मत लो, corners लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And when you combine opposite यानी corners 6 में से 2 जब combine करते हो तो line बनता है ना? तो कितने lines आ जाएंगे? 15 15. But problem क्या है? साइड डिवाइड होता है माइनस 6 करना पड़ता है जो उसने n माइनस किया है. क्यों करना पड़ता है? Look at this now. While you are taking this, इसमें ये जो आप 6 कॉम्बिनेशन 2 करते हैं ना वो ये भी काउंट करता है एज अ डायगोनल जब आप इन दोनों को मिला दो. बट दिस इज नॉट डायगोनल, दिस इज साइड. वो इसको भी काउंट करता है, वो इसको भी काउंट करता है, इसको भी काउंट करता है, इसको, बिकॉज दिस इज आल्सो कॉर्नर टू कॉर्नर, राइट? तो वो 6 आपको माइनस करना पड़ता है. सो द टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी एक्चुअली 9. तो इस तरह अगर आपके पास n नंबर हो और 2 एट ए टाइम लेते हो तो आपको n माइनस करना पड़ता है जितने साइड का वो है. रीजन, बिकॉज वो साइड्स को भी डायगोनल्स ले लेता है क्योंकि कॉर्नर्स टू कॉर्नर्स कॉम्बिनेशन है जिसमें साइड भी इंक्लूड हो जाती है. So that's why it will be n factorial divided by 2 factorial n minus 2 factorial minus n. Got ये it? सॉल्व करने बैठे थे सारा अल्फा वाली इक्वेशन काट दी 2 फैक्टोरियल इतना काफी है, इससे आगे नहीं जा. You get it? Excellent. Question number 10. फिजिक्स के ऊपर 10 खत्म कर 10. देंगे आज In how many ways are a group of 10 girls can be divided into a group of 3 and 7 girls? हाँ ये भी हमने किया लेकिन इसमें एक पार्ट उन्होंने सॉल्व नहीं किया हम 10 7 होगा और 10 3 होगा होना चाहिए ना Hmm? 10 कॉम्बिनेशन 7 और 10 कॉम्बिनेशन 3 होना चाहिए ना How? दो में डिवाइड कर दो ग्रुप है हाँ, तो एक ग्रुप पक्का कर लो, 3 तो बाकी डिवाइड कर चूज, देंगे और 7 में से सिलेक्शन कर लो. क्या ग्रुप ऑफ 10 है ना 10 टोटल है उनमें से 10 को 2 में डिवाइड कर देंगे एक 7 गर्ल्स होंगे एक 3 हाँ, तो 3 कॉम्बिनेशन 3 और कॉम्बिनेशन फिर 3 7 कॉम्बिनेशन 10 कॉम्बिनेशन 7. 3 कॉम्बिनेशन 3 कैसे होगा 10 कॉम्बिनेशन 3 नहीं होना चाहिए 10 कॉम्बिनेशन 3 इंटू, 10 कॉम्बिनेशन 7 नहीं, अगर आप 10 कॉम्बिनेशन 3 ले लो तो मतलब आपने 3 लड़कियां ले ली, फिर जाएगी 7 7, तो फिर 7 कॉम्बिनेशन 7. 7 कॉम्बिनेशन 7 10 कॉम्बिनेशन 7 क्या लेकिन दो अलग ग्रुप है हाँ इधर देखो, 10 लड़कियां हैं, आपने एक ग्रुप बना लिया, सपोज 3 लड़कियों वाला, अभी समझ गया सॉरी 10 में से,
राइट। अब पीछे कितनी लड़कियां रहेगी? 7 कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली। मल्टीप्लाई कैंसिल किसको करना है? हाँ वो आई डोंट नो व्हाट शुड बी द आंसर बट दिस इज हाउ इट शुड वर्क द 1 7 1 आई डोंट नो। एग्जैक्टली, पता नहीं क्या उन्होंने भी चक्कर किया। है। हाँ वो भी सही है, वो भी सही है। लेकिन उससे पता नहीं चलता ना, ये ठीक है। हाँ अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं होती, इससे अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जब हमने चेक कर रहे उससे पता नहीं क्या लिखा है इसमें। खाली वाली करो, जस्ट यूज द थिंकिंग वी हियर। एग्जैक्टली।
You have to change this. This is so 20 इधर select होगा तो it will be sorry 80 combination. क्यों? क्योंकि 100 एप्लीकेंट्स है, इसमें अंदर ही 20 सर्विंग कैंडिडेट्स है, तो 20 तो ये हो गए, तो बाकी रह जाएंगे 80. 20 से मैं सेलेक्ट करने दो और 80 से मैं स्कोर. द आंसर विल बी व्हाट? 20 सर्विंग कैंडिडेट मतलब 20 सेलेक्टेड है. नहीं, कैंडिडेट्स की वैरायटी है, यानी 80 जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट है, 20 जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, यानी ये सपोज न्यू कमर्स हैं और ये ऑलरेडी है, मौजूद है, यानी दे हैव बीन वर्किंग फॉर अ व्हाइल. तो टोटल कितने में? 100 कैंडिडेट्स, और ऑफिस में उनको सेलेक्ट करना है एज एन ऑफिसर, तो 2 इससे सेलेक्ट होंगे और 4 इससे, टोटल ये 100. उधर मैं कंफ्यूज हो गया, थॉट 100 डिफरेंट है और 20 और लोग हैं, बट नो, इधर इसने क्लियरिफाई किया था कि 20 सर्विंग कैंडिडेट्स आर अमंग द एप्लीकेंट्स, वो एप्लीकेंट्स में ही से है. सो द आंसर विल बी डिफरेंट. कितना? 300, 500, 200.